Good morning, students. I am Pankaj Bakshi from St. Arnold Higher Secondary School, Vijayanagar, Indore. After a long time, I am making a new video because already I uploaded 12th class practical videos as well as theory videos on my YouTube channel. My YouTube channel is Pankaj Bakshi Physics, Theory and Practicals. Some 11 theory videos are also there. But now what is the situation? You know very well, due to corona, due to COVID, 1 year is already passed and the second is also moving on. It's very difficult for the students and for the teachers just go for the physical classes. Always third wave अभी कह रहे हैं कि it's going to come. तो but thanks to CBSE, they rationalized the syllabus. And today I am going to discuss you that rationalized syllabus. Why? क्यों? Because now we have a semester pattern is here, term 1 and term 2 examination, and students are very happy because now everything is just like for maybe NEET examination and for JEE examination. So they are 2 in 1. They are preparing with CBSE, IIT, JEE and NEET also. So theory already you know, rational syllabus you have. If you don't have, I am giving you this rational syllabus today itself. So without taking your much time, हम चलते हैं आगे. Today I am going to discuss physics 042 कोड है हमारा, याद रखें, and class is 12th. 11th में अभी नहीं बता रहा. Now it is syllabus for term 1. Term 1 means from now to November, December. In November, December we have examination. And it is practical plus theory दोनों बता रहा हूँ. In theory it is comprising of 35 marks बच्चों, and this paper consists of total objective type, but in objective type some MCQs are there, some assertion reason questions are there and some case study based questions are there. ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, don't worry. And in practical, for practical there should be a record of 4 practicals. It means 4 practicals you have to perform. 4 whatever practicals they have given उसमें से 4 perform करने हैं, plus 3 activities, but activities only by teacher, demonstrated by teacher only. आपको perform नहीं करना है, आपको देखना है बस. And how practical examination is going to be conducted by CBSE? Internal examiner is there, जैसे मेरे स्कूल में मैं हूँ और योर टीचर. One external examiner is there. Suppose I am going to take examination in another school, so I am external examiner. Observer is also there, appointed by the board, कि whether examination is conducting according to the CBSE rules or not. Norm should be there. So a practical examination is of 1.5 hour and total marks are 15. प्रीवियसली इसके पहले क्या होता था, 3 hours एग्जामिनेशन एंड टोटल मार्क्स 30. तो आधा हो गया इसका, पर एक प्रॉब्लम हो गई. क्या प्रॉब्लम है देखो, स्टूडेंट्स हैज टू परफॉर्म 2 experiments in examination in 1.5 hour, which is injustice for the students. Why? Because previously in 3 hours they have to perform 2 experiments. Now how they are going to perform 2 experiments in 1.5 hour? तो you have to be hurry up, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. ओके, एंड मे बी CBSE इज गोइंग टू चेंज दिस कि चलो एक ही एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन अभी फिलहाल नाउ दिस टाइम यू हैव टू परफॉर्म 2 experiments. या भूलना नहीं कि पंकज सर ने बोल दिया तो ऐसा नहीं है. CBSE व्हाट CBSE इज आस्किंग, 2 experiments टू बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स, STUDENTS लिखा नहीं मैंने, एंड दे कैरीज 8 marks, यानी 4 + 4 हो गया. प्रीवियसली 8 मार्क का एक एक्सपेरिमेंट होता था, 8 का. देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो कॉपी आप बनाएंगे उसमें एक्सपेरिमेंट प्लस एक्टिविटीज यू हैव टू राइट. कैसे बनाना है मैं बताऊंगा. ये 2 marks का होगा. देन एक्सटर्नल इज गोइंग टू आस्क वाइवा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स एंड एक्टिविटीज एंड इट इज ऑफ 5 marks. तो टोटल आए तो 2, 10 और 15 marks. तो ये हमारा सिलेबस है भाई टर्म 1 का. टर्म 2 का बाद में बताएंगे. प्रैक्टिकली सेम फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2. तो अब मैं आपको
सिलेबस समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो मैं मोबाइल निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्या देने वाला हूँ, पूरा दिखाऊंगा पेजेस, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो डोंट वरी, आप इन ऑल माय प्रैक्टिकल्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू, ये देखिए आप सब दिखेगा आपको, ये देखिए फिजिक्स क्लास 12 सिलेबस असाइन फॉर टर्म 1। इसमें एग्जामिनेशन का टाइम देखिए आप, टाइम 90 मिनट्स हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स 35। ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। हियर वी हैव यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 2 करंट, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट। एंड मार्क्स कंबाइन कर दिए, देखो उन्होंने कैसे कंबाइन कर दिए, ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन कर दिया उन्होंने, 17 मार्क्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 18 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स हो गए। ये सिलेबस है इसका, मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको सिलेबस, अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो आसानी से इसको देख सकता है। ये देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा सा हाथ मेरा शेक करता है, मेरी एज थोड़ी ज़्यादा है इसलिए। और नाउ कमिंग टू दी प्रैक्टिकल सिलेबस असाइन फॉर प्रैक्टिकल फॉर टर्म 1। देखिए टोटल पीरियड 16, वो तो खैर देखी जाएगी। फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल एज पर द डायरेक्टिव्स और डायरेक्शंस ऑफ सीबीएसई। रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट्स, 3 एक्टिविटीज़। तो देखिए वही लिखा है, 2 एक्सपेरिमेंट्स टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 2 मार्क्स, वाइवा 5 मार्क्स, टोटल 15। अब मैं एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट फॉर टर्म 1। 1 2 3 4 5 6 एक्सपेरिमेंट दिए हैं भाई, एंड आउट ऑफ दीज 6 एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू परफॉर्म एनी 4 एक्सपेरिमेंट, जो भी आपके टीचर्स करवाएं। एक्टिविटीज़ भी दी हैं, एक्टिविटीज़ और ऑल्सो 6, इसमें से 3 एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। तो मैंने खैर अलग अलग किया हुआ है, और ये टीचर्स का व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या चाहते हैं। अब कैसे लिखना मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपको पहली फाइल दिखाता हूँ। ये फाइल एक हमारी गुड़िया की है, एंड ये सर्टिफिकेट देखिए आप। टर्म 1 लिख देंगे, नेम लिखेंगे, रोल नंबर, क्लास लिखेंगे, एग्जामिनर नंबर, इंस्टीट्यूशन का नाम, फिजिक्स, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सर्टिफाइड, देखिए मैंने लिखा है 4 + 3 एक्टिविटीज़, यानी 4 प्रैक्टिकल्स 3 एक्टिविटीज़, फिर 4 + 3, टीचर साइन, एग्जामिनर साइन, प्रिंसिपल के रबर स्टैम्प होगा एंड डेट। अब हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ मैं ढूंढ के, देखो अब आप, ये आपको पसंद आएगा। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे भरते नहीं इंडेक्स को। ये देखिए इंडेक्स, देखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा है, पेज नंबर लिखना है, ऊपर टर्म 1 लिखना है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में कब हुआ और डेट ऑफ सबमिशन कब हुआ, और टीचर के सिग्नेचर। ये 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। एंड देन इन द सेम यू हैव टू राइट एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। यहाँ एक्टिविटी के नाम लिखना है आपको पूरा, पेज नंबर, डेट, सब लिखना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आता हूँ मैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये आ गया मेरा, टर्म 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दूसरी कॉपी भी आ गई। सो सबसे पहले याद रखिए कि वेयर एवर यू हैव टू राइट एम, उसी के पास में देयर इज ए ब्लैंक पेज, एंड ब्लैंक पेज यू हैव टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम या जो भी डायग्राम हो। तो चल रहा हूँ मैं, देखिए एम, थिंग्स रिक्वायर्ड लिखा, थ्योरी लिखी, थ्योरी के बाद कैलकुलेशन है, थ्योरी यानी फार्मूला, और रिजल्ट है, और ऑब्जर्वेशन टेबल इज हियर, दिस इज ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन के सामने होना चाहिए, इसलिए उस गुड़िया ने यहाँ बना दी, अदरवाइज़ ये नेक्स्ट वाले पेज पे हो सकती थी, कोई बात नहीं। देन प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस के बाद सोर्सेज ऑफ एरर, ये भी आपको एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा एज इट इज़। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। तो सभी कुछ लिखा है, कुछ चीज़ें मैंने कट की है जो
बुक में लिखी हुई हैं पर ये यूज़ नहीं आती, इसलिए हमें नहीं लिखना चाहिए। देन थ्योरी यानी फार्मूले, कैलकुलेशन, डायग्राम, 2 डायग्राम बनते हैं इसमें, 2 डायग्राम्स आर देयर। और टेबल यहाँ नहीं दिखा अब आपको क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये टेबल बनाया फॉर जी के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट में 3 रीडिंग ली थी हमने, बट जनरली वी एम टेकिंग 2 रीडिंग्स, क्योंकि 2 और 4 वोल्ट, 6 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है तो होता नहीं है। देन मीन निकाला के का रिजल्ट, और फिर वही सोर्सेज ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आया। टू कंपेयर EMF ऑफ 2 गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। चलो आ जाओ, ये थिंग्स रिक्वायर्ड, थ्योरी, इस सब का फोटो डालूंगा मैं, देखो आपको। ये डायग्राम है, देखिए आप, कितना प्यारा डायग्राम है, अच्छा लगा होगा आपको। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल है, कैलकुलेशन है नीचे, एंड कैलकुलेशन यहाँ भी है, देखिए ऑब्जर्वेशंस आर ऑल्सो देयर, प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर आर ऑल्सो देयर। ये सोर्सेज ऑफ एरर आ गई। ये 3rd एक्सपेरिमेंट हुआ। 4th में डायग्राम नहीं है, तो मैं देखो डायग्राम यहाँ दूसरे बच्चे की कॉपी से दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम। तो ये आई एम फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मीन्स विथ ए सोनोमीटर, ये थिंग्स रिक्वायर्ड, फार्मूला, सब कुछ लिखा है मैंने। ऑब्जर्वेशन टेबल है, 4 रीडिंग्स ली है, वैसे 3 रीडिंग्स भी पूरी होती हैं, ठीक है चलेगा। मैंने कुछ ठीक ठाक किया हुआ है इसमें, वो देखना आप कि सेंटीमीटर को मीटर में कहाँ कन्वर्ट किया है। और ये देखो बच्चे ने डायग्राम भी बनाया था तो मैंने लिख भी दिया था। रिजल्ट 50 हर्ट्ज आती है फ्रीक्वेंसी, उससे आसपास ही आएगी। प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर। नाउ लास्ट एक्सपेरिमेंट निकाल रहा हूँ। लास्ट एक्सपेरिमेंट में एक ग्राफ पेपर भी होता है, हाँ है ग्राफ पेपर। तो टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स रे, नहीं सॉरी, 4 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। एंड आफ्टर 4 एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़, ये मैं टर्म 1 का बताने लग गया था, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये देखिए एक्टिविटी 1, या मैंने सेक्शन 1 लिखा है, सेक्शन ए लिखा है, देखो अब ये सेक्शन ए नहीं है, ये अब ये क्या हो गया, ये हो गया टर्म 1। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए एक्टिविटी में लिखना है पूरा सभी कुछ, जो भी कुछ दिया है, वॉट एवर इज़ गिवन इन द बुक यू हैव टू राइट। डायग्राम इज ऑल्सो देयर। देन ये देखिए कंप्लीट जा रहा है। प्रोसीजर भी लिखना है यहाँ, आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट में हमने प्रोसीजर नहीं लिखा है। फिर हम आ गए एक्टिविटी 2 पे, ये एक्टिविटी 2, ये देखिए ये एक्टिविटी 2, फिर ये एक्टिविटी 3। इसका डायग्राम भी होना चाहिए, तो इसमें डायग्राम नहीं बना है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये एक्टिविटी 3 का डायग्राम है, बढ़िया बना है, ये एक्टिविटी 3। ओके, एंड देन ये दिस इज सेक्शन भी आ गया। तो 3 एक्टिविटी हो गई हमारी प्यारे बच्चों, हो गई। तो आपको एक चीज़ और बतानी थी, मुझे याद आ रहा है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस असर्शन रीजन क्या होते हैं। देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चंस ये है 1 असर्शन ए, क्वेश्चन नंबर 142 देखें आप। ये असर्शन दिया है और रीजन दिया है कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो रीजन बोल रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव। तो सी आंसर सही हुआ, क्योंकि ए तो ट्रू है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ये गलत बोल रहा है, तो हम सी आंसर लिखेंगे। तो ऐसे असर्शन रीजन आते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव केस स्टडी क्वेश्चंस, वो भी दिखा देता हूँ। ये केस स्टडी होते हैं, ये देखिए केस स्टडी इज जस्ट लाइक ए अनसीन पैसेज। ये देखिए केस स्टडी में पूरा एक पैराग्राफ दिया है और फिर उसके क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। तो दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स। ओके बच्चों, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा कुछ, जो भी कुछ मैंने आपको बताया है। सो इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। माय ऑल प्रैक्टिकल्स वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड वाइवा वीडियोस आर ऑल्सो अवेलेबल। तो आप वाइवा भी देखें, वॉट एवर प्रैक्टिकल बुक्स यू हैव, उसके पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू जस्ट read them very carefully, listen to your teachers very carefully and don't panic। फाइल अच्छी बनाएं आप, ज़रा कवर ववर चढ़ा दें, देखो कवर चढ़ा हुआ है, कवर वगैरह चढ़ाना चाहिए ना, गंदी थी फाइल लेके नहीं आना। और सुंदर राइटिंग लिखें,
सुंदर राइटिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें बच्चों। अगर आप कुछ और चाहते हैं या हमने कुछ आपको ऐसा बताया है जो आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, बताएं हमें बड़ा अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब भी करें। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू।